टॉपिक लिखिए आप लोग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके सपोर्ट में दो थ्योरी दिया गया है, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसी को हम लोग शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, वीबीटी। पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो लिखवा रहे हैं उसको आप लिखोगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन है वो बताएंगे। लिखिए, followings are the main postulates, followings are the main postulates of this theory, followings are the main postulate of this theory, अब डैश दे करके पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। लिखो, it states that there is a covalent interaction, it states that there is a covalent interaction between central metal and ligand, between central metal and ligand in complexes, between central metal and ligand in complexes. Next point, for the formation of covalent bond, ब्रैकेट में लिखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज, ligand provide its lone pair electron, ligand provide its lone pair electron, while central metal provide its vacant, central metal provide its vacant and hybrid orbital, Next point, if inner d orbital, देखो इनर डी ऑर्बिटल के ब्रैकेट में लिखोगे n-1d, आगे समझाएंगे क्या है। इफ इनर डी ऑर्बिटल n-1d involve in hybridization, then the complex is called inner orbital complex, or low spin complex, inner orbital complex
और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, if outer d orbital, if outer d orbital, outer d orbital involve in hybridization, if outer d orbital involve in hybridization, involve in hybridization, in hybridization, involve in hybridization, then the complex, then the complex is called, then the complex is called एक मिनट वो आ गया तो डिस्टर्ब हो गए। If inner d orbital involve in hybridization, then the complex is called inner orbital. If outer d orbital involve in hybridization, then the complex is called outer orbital complex. Then the complex is called outer orbital complex, outer orbital complex, or high spin complex, or high spin complex, high spin complex. Next point, the presence of unpaired electron, the presence of unpaired electron make the complex paramagnetic, make the complex paramagnetic, paramagnetic, make the complex paramagnetic, paramagnetic. And if all the electrons, and if all the electrons are paired up, and if all the electrons are paired up, then the complex is called, diamagnetic. Then the complex is called diamagnetic. Diamagnetic. Then the complex is called diamagnetic. Next point, the magnetic moment को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में आप ये लिख लो, म्यू पढ़ा जाता है, ऐसे हम लोग यू लिखते हैं, तो इसी का ये पार्ट ऊपर की तरफ में बढ़ा दिया तो म्यू हो गया। द मैग्नेटिक मोमेंट ब्रैकेट में म्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स can be determined, of the complex can be determined with the help of, unpaired electron, with the help of unpaired electron, and by using the following relation, फॉर्मूला लिखिए, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, और इनका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम लोग bm से रिप्रेजेंट करते हैं, बोर मैग्नेटॉन, और यहां n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
बोर मैग्नेटॉन, बीएम यूनिट है, बोर BOHR, मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन यूनिट है ये मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन। नोट कर लिए? लिखिए फॉलोइंग्स आर some important followings are some important inner followings are some important inner and outer orbital complexes, inner and outer orbital complexes। अब यहां देखिए ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो आपके बुक में दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने यहां पर एक जगह पे जमा कर दिया है। आपको ये नोट करना है, इस जगह पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस जगह पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नोट कीजिए, फिर समझाते हैं क्या है। आई कार्ड दे दिए आप लोग अटेंडेंस के लिए। अब वो एस्ट्रिक मार्क क्यों किए हैं वो बताएंगे आगे। ठीक, अब चलो यहां थोड़ा समझते हैं ध्यान से। ये कॉम्प्लेक्स में ये आपको याद रखना होगा। अब जैसे ही बोले कि याद रखना होगा तो अब टेंशन आ गया, अब इतना भी याद रखना होगा। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे लिगेंड को देखो आप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन कौन है? यहाँ NH3 NH3 NH3, यहाँ CN 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 CN। इधर वाले में देखो हैलोजन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यानी हैलोजन है। दूसरा कौन सा पार्ट आ गया? वाटर वाटर वाटर। यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मोस्ट प्रोबेबली लिगेंड NH3 है और CN माइनस है। इस वाले में हैलोजन है यानी X माइनस है और दूसरा H2O है। तो इतना तो एक क्लू मिल गया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है और उसमें हैलोजन है और अगर वाटर प्रेजेंट है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और जहां पर NH3 और CN है वो इनर ऑर्बिटल होगा। CO भी एक्चुअली इनर ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन करता है, लेकिन इस जगह पर एक्सेप्शनली जुड़ा हुआ है। ये एक क्लास के बाद में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, कि यहां पर क्यों आ जाता है। यानी कि 3 लिगेंड आपको इनर ऑर्बिटल का मिलेगा और 2 ऑर्बिटल यहाँ पर, 2 लिगेंड जो है आउटर ऑर्बिटल का। वहां तक जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसके अलावा इसके बाद जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर पूरा लिगेंड का एक और लिस्ट मिलेगा जिसमें और भी लिगेंड है। उसके अनुसार से हम लोग गेस कर सकते हैं कि और कौन कौन इनर में जा सकता है और कौन कौन आउटर में जा सकता है। इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल क्या है मतलब इसका, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, इनमें क्या फर्क पड़ जाएगा, वो सब हम यहाँ एग्जाम्पल से बताएंगे। आप लोग भी जब नोट करने के लिए बोलेंगे तो नोट कीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देंगे, लगेगा कि हाँ कुछ पार्ट जो वो सीखे हैं। सेकंड वाले में आप ट्रैक पकड़ लीजिएगा और थर्ड बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे बनना है। उसके बाद में बाकी का बनता चला जाएगा। आपकी कॉपी में ये लिस्ट है, जो पूछेंगे उस वक्त में आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पर क्या मतलब है निकलता है। लिखे दो क्वेश्चन। लिखे विद द हेल्प ऑफ, एक मिनट एक पॉइंट और छूट रहा है, एक पॉइंट और छूट रहा है। क्वेश्चन है उसी में एक और लिखो। विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी वाले में लिखना। विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी we can also predict the hybridization
We can also predict the hybridization and geometry of the complex. And geometry of the complex. Geometry of the complex. Geometry of the complex. हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर के समय में भी ये पार्ट हम लोग लिखे थे, उसी का यहां पर रिपीटेशन है। एक जगह पर हम लोग रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को, उसी के अनुसार से इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज्योमेट्री आप भी नोट करो इसको, फिर समझाते हैं। आप सब लोग नोट कीजिए। स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, देन ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अगर 5 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, dsp3 भी हो सकता है या फिर sp3d भी हो सकता है, और दोनों में ज्योमेट्री सेम आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल दोनों में सेम आएगा। अगर 6 है तो यहां भी 2 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 या फिर sp3d2, sp3d2, और दोनों में इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, लेकिन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी सेम होगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्या हुआ? लिखवा दिए थे कोऑर्डिनेशन नंबर के समय ना। हाँ, तो वो तो बोलें कि कोऑर्डिनेशन नंबर के समय लिखवाए थे, इसको लिखो ना, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब बता देंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, वो ध्यान नहीं रहा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाकी, वो करवा देंगे। अभी पहले ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट किए हैं, तब याद भी दिलवाना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाकी। चलो देखो, अब यहां थोड़ा सा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो बात कर रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल कहने का मतलब जैसे अगर एक 4s है और उसके पहले में 3d है तो ये इनर ऑर्बिटल आ जाएगा, और अगर 4s के साथ में 4d इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में भी अंदाज लग सकता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में d पहले है तो इनर होगा और d बाद में है तो आउटर होगा। अब बताओ तो dsp2 इनर होगा या आउटर होगा? यहां d पहले आ रहा है, इसका मतलब इनर, यहां है ही नहीं, ये आउटर का है। यहां d पहले आ रहा है, ये इनर आएगा, यहां d पहले आ रहा है, यानी कि ये इनर होगा। यानी जहां dsp2, dsp3 या d2sp3 इन्वॉल्व हो रहा है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जहां पर ये रेड से एस्टिक मार्क किए हैं वो हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होता है, तो बाकी का जो दूसरा होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा। आप लोग भी ऐसे स्टार मार्क करके ऐसे नोट कर लीजिए, ये इनर का होगा और वो आउटर का होगा। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को बताते हैं। लिखिए आप लोग भी क्वेश्चन। देखिए, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, with the help of valence bond theory, valence bond theory
predict the hybridization, geometry, predict the hybridization geometry and magnetic behavior of the complexes अब यहां हम 2-3 एग्जांपल्स बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। लिखने के लिए तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, सेंड कर देंगे, ये पूरा स्क्रीन का पार्ट जो चला जाएगा आपके पास में। टाइम आधे घंटे ही बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ये टॉपिक हो जाए। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे तुम लोग भी घर जाओगे तो ऐप में भी ये पूरा दिखाई देगा, रिकॉर्डेड पार्ट जो है वो आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो ऐप में दिखेगा, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हो। हम इसका बाकी का वो सेंड भी कर देंगे। समझना जो है ज्यादा जरूरी है, जो पूछेंगे वो बताना। जैसे फर्स्ट हम ले लिए, सपोज CO F6 3-, ठीक है। आप बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल कौन है? CO। अरे भूल गए यार, CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, और लिगेंड कौन है? F6। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सेंट्रल मेटल का। CO का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो F के लिए, फ्लोरीन के लिए हो गया -1 × 6 = -3, x - 6 = -3, x वुड बी इक्वल टू -3 + 6, वैल्यू कितना आ जाएगा? +3। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 26। याद करो, यहां पर पहले हम लोग आर्गन लिखते हैं, इनर्ट गैस आर्गन 4s2 3d6। आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करते हैं, यानी कि आर्गन 3d6 4s2। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है, तो CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 3+ का मतलब वो इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है। तो अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? आर्गन 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 3d5। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। आर्गन 3d है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, यहां 3d5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में यहां पर 4s ये खाली रहेगा, 4p खाली है 4th ऑर्बिटल का, और यहां पर 4d ये भी खाली है, 1 2 3 4 एंड 1 5। ये 4p है, ये 4d है। पहले ही बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आपको लगेगा कि इसका 10% 20% पार्ट ही समझ में आ रहा है, पेशेंस रखना है। इसके जगह पे आपका ट्रैक बनेगा, फिर सेकंड थर्ड में फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, पेशेंस लूज नहीं करना है। यहां ये लिख दिए। अब हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ में बढ़ना है, यानी इन CO लिगेंड कौन सा था? फ्लोरीन, यानी F6 3-। आप बता सकते हो ये इनर है या आउटर है? इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है? आप देखो लिगेंड कौन सा है? F, यानी हेलोजन। तो हेलोजन इनर आता है या आउटर आता है? आउटर आता है। ऋतिज्ञा ठीक से देखो, इनर लिखी है तो हेलोजन इसके पहले वाले में ही तो लिखे हैं हम लोग। अच्छा, वो लिस्ट वहां पर था। इनर ऑर्बिटल में आता है NH3 CN और CO, और आउटर ऑर्बिटल में आता है हेलोजन और H2O। तो इस कॉम्प्लेक्स में यहां पर देखो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन यानी कि हेलोजन, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां लिखिए आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या? यहां तक सब में कॉमन आएगा। इनर कहता है कि हमें अंदर का d ऑर्बिटल चाहिए, अब आप चाहे जैसे अरेंज कीजिए। और आउटर वीक टाइप का होता है, उसको जहां खाली मिलेगा वहां से वो अरेंज कर लेगा, ठीक है।
इनर जबरदस्ती अंदर की तरफ में जाएगा। अगर उसको जगह मिला अंदर के डी ऑर्बिटल का, जैसे यहां हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखे डी डी, यहां भी डी, अगर अंदर का डी खाली है तो ठीक है, नहीं खाली है तो अंदर वाला पेयर कर देगा। और आउटर क्या करता है, जहां से उसको खाली जगह मिला है वहां से वो अपना फिल करता जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अब यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल है, यानी कि जो आयन का कन्फिग्रेशन जैसे था वैसे ही यहां पर लिखेंगे आर्गन, इसके कन्फिग्रेशन को वैसे ही लिख लिए 1 2 3 4 एंड 1 5। ये आ गया 3d5। इलेक्ट्रॉन जैसे था, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। अब इस जगह पर 4s, ये आ गया 4p, और इस जगह पर 4d, 1 2 3 4 एंड 1 5। यहां 4s 4p और 4d। आप देखो तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फ्लोरीन मोनोडेंटेट है तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। तो यहां से ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6। ये जो क्रॉस क्रॉस किए हैं ये भी इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर एरो देते तो कंफ्यूजन हो जाता। ये एरो है मेटल का इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस क्रॉस है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक उसको ऑर्बिटल चाहिए, तब ये इतने ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो गया। ये सारे ऑर्बिटल आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड नेचर का होता है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो S का 1, P का 3 और D का 2 है, तो ये आ जाएगा sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहां से इंफॉर्मेशन अलग करते हैं। आप बताओगे इस जगह पर लिखे हैं हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब यहां के बाद में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो मेटल वाले का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू हो गया 5। अभी हम लोग लिखें कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारामैग्नेटिक, और यहां तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पारामैग्नेटिक होगा। अब अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालें तो यहां पर आ जाएगा रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, यानी रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, यानी ये वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर 35, यानी 5.8 के अप्रॉक्स में आएगा। रूट निकाल करके देखोगे, हम बाकी वैल्यू भी लिख देंगे। अभी 5.8 लिखते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन कितना आता है, तो ये इतना काम करना है। अब ये एक एग्जाम्पल बताएं। अब इसको थोड़ा सा फिर से गौर से देखिए, क्या क्या स्टेप हम लोग यूज करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है सबसे पहले उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आया उसके अनुसार से आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट ये देखते हैं कि ऑर्बिटल इनर है या आउटर है। अगर आउटर है तो बाहर का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और अगर इनर है तो अंदर का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। कौन सा होगा ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अभी हम लोग पढ़े कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, D2sp3 और sp3d2। अगर आउटर है तो sp3d2 जाएगा, और अगर इनर है तो D2sp3। तो जैसे ही पता चला कि ये आउटर है तो इसको तो sp3d2 चाहिए, तो अंदर वाले के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, यहां से अपना लेकर के आगे बढ़ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट जब बताएंगे तो वहां पर अब आपको समझ में आए कि अब आगे का क्या करना है। थोड़ा थोड़ा सा जो है आप वहां बताओगे। एक दूसरा हम लोग कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, FeCN6 4-, यहां ये सेकंड हो गया बी। आप बताओ सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग। कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में तो लिखा हुआ भी नहीं है, आप बस दिमाग पे जोर डालोगे। पहला काम क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का। बताओ यहां सेंट्रल मेटल कौन है, Fe यानी आयरन।
तो पहला काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के लिए हो गया x, Cn के लिए -1 × 6 इज इक्वल टू -4, x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, वैल्यू कितना होगा +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहां सेंट्रल मेटल आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा आर्गन 4s2 एंड 3d6। अरेंज करेंगे, चूंकि आयन का लिखना है तो अरेंजमेंट पर आ जाएगा आर्गन 3d6 एंड 4s2, 3d6 4s2। अब Fe कितना है +2, 2+, बताओ इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, बताओ। Fe2+ का, आयरन का हम लिख दिए Fe2+, 2+ का मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लूज किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, बताओ इसका कन्फिग्रेशन, बोलो। अरे यार ये सब तो जो 11th वगैरह में पूरा बताया हो तो सब गड़बड़ा ही जाओगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, वो सब रिस्पॉन्ड कर रहा है और तुम लोग यहाँ बैठे हुए तो फिर नहीं पता चल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो 3d6। अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना लो, यहां आर्गन डी में 1 2 3 4 एंड 1 5, 3d6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब इस जगह पर वैकेंट कौन कौन सा हो गया, 4s, यहां पर 4p और इस जगह पर 4d, 1 2 3 4 एंड 1 5, ये हो गया 4d, 3d6 4s एंड 4p 4d। अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में, इन FeCN6 4-, बताओ ये इनर है या आउटर है, ये क्या है इनर है, तो यहां इनर। अब इसी जगह पर मेन है इनर ऑर्बिटल। अब बताओ यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब सोचो, अभी हाइब्रिडाइजेशन लिखवाए हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। अब ये क्या करेगा, यहां आएगा मेटल के पास, अभी देखो तो इलेक्ट्रॉन D2 का अंदर का तो भरा हुआ है, इसको बोलेगा कि देखो भाई हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हमको अंदर का d ऑर्बिटल चाहिए। ये बोलेगा देखिए हम तो रूल के अनुसार से जो है फिल किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन को, हुंस रूल बताता है कि पहले सिंगली फील्ड होगा उसके बाद में फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ये बोलता है उसे हम नहीं जानते, जैसे देखते होगे सोसाइटी में भी कई तरह के लोग होते हैं, बोलते हैं हम ये चाहिए का मतलब चाहिए, अब तुम जहां से अरेंज करो ये तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ बोलता है कि हमें 2 d ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, अब तुम उसको खाली करो, कौन सा रूल का वायलेशन करना है नहीं करना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमें 2 चाहिए। अब जरा आप सोचो तो ये 2 को हम कैसे खाली रख सकते हैं, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को कहां कर दे अंदर, तो अंदर कर देंगे तो यानी कि हुंस रूल के वायलेशन के अनुसार से इनका फिलिंग होगा। आर्गन 6 इलेक्ट्रॉन था तो पहले ये डी बना दिए, 1 2 3 4 एंड 1 5, यहां 3d6 है। अब देखो इनर के केस में कैसे फिल कर रहे हैं, चूंकि पेयर करना है तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, खाली हो गया दियो। अब यहां के बाद में बाकी क्या बचा हुआ था, 4s 4p और यहां 4d, 1 2 3 4, 3d6 4s 4p 4d। अब अपना ये लिगेंड जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यहां 1 2 3 4 5 6। अब बता सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, ये दोनों किसका है डी का, तो पहले ये लिख दिया D2, 2 क्यों, क्योंकि 2 ऑर्बिटल है। ये किसका है S, ये किसका है
कितना ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, D2sp3। अब यानी कि इंफॉर्मेशन क्या आ गया हमारे पास में, इस कॉम्प्लेक्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, तो बता सकते हो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, अनपेयर्ड कहने का मतलब क्या होता है, अकेले अकेले। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो कॉम्प्लेक्स पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक उसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद में अट्रैक्शन फील्ड करता है, और डायमैग्नेटिक उसे कहते हैं जो वीकली रिपेल्ड होता है, रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो पारामैग्नेटिक, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप रहे तो उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाता है। तो n का वैल्यू 0 है, और इसी वजह से जब म्यू का वैल्यू भी निकालेंगे तो कितना होगा, 0। n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर से देखो, बैक टू बैक देखो। यहां पर COF6 3- था, पहले हम लोग इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। वही काम दूसरे वाले में भी किए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले और आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अंतर कहां पर आया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था तो इसके आयन के कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं किए, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार से वैकेंट ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दूसरे वाले में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए अंदर का डी चाहिए उसको, तो उसके लिए हुंड्स रूल को वायलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए उसके बाद में ये सिलेक्ट किया है। बाकी का दोनों पार्ट क्लियर हुआ, तो हमें लगता है कि अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। अब थर्ड वाला हम यहाँ बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप ही बताते चलोगे। अब ये अलग बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है, ये अलग बात है कि एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, तब ये सब तो दुर्भाग्य का बात है। ठीक है, जब ये सारा कुछ, इवन आप ये देखो कि आपके ऐप में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डाल दिए, ये पहले भी बता दिए कि हाँ भाई देखो आगे जाकर के इसका जरूरत पड़ेगा। अब बाकी मानना न मानना तो आपके ऊपर में है, या तो अभी आप पढ़ोगे तो साथ में चलोगे, या तो फिर नवंबर दिसंबर में इसमें उलझे हुए रहोगे। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होगा तो हम हैं अवेलेबल, दिसंबर जनवरी के बाद में तो फिर तो जो तुमको टाइम लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, निकाल करके प्लान करोगे, 10 बार सोचोगे, कहीं जाएंगे कुछ और पूछ दिए तब मटिया देते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम ही लोग जो है वो आ पाता है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, NiCl4 2-। अब आप बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर का, निकेल है ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, निकेल XCl का -1 × 4 = -2, x = -2 + 4, वैल्यू कितना आ जाएगा, +2। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां आ जाएगा आर्गन 4s2 एंड 3d8। अब इसका अरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी कि अरेंज करने का मतलब ये 4th ऑर्बिट है, ये 3rd ऑर्बिट है, तो 3rd ऑर्बिट को अंदर में कर देंगे, 3d8 और यहां पर 4s2। अब Ni2+ का लिखना है, तो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर्गन 3d8। आर्गन 3d8 एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। आर्गन 3d, बताओ 3d में d सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 एंड 1 5, ये 3d8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। अब इस जगह पर 4s और यहां पर 4p। आप चाहें तो d भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा, देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना है, 4, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हो सकता है, या तो DsP2 या sp3, यानी कि इसके बाद वाला d आएगा ही नहीं।
तो जब डी आएगा ही नहीं तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आप लिखोगे तो उसकी वजह से वो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है यहां पर, इसलिए अब सिर्फ 4s4p लिखे हैं। अब आगे इन NiCl4 2-। अब बताओ इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? क्या है? आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल। जब ये आउटर ऑर्बिटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे या इसको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। आउटर है, कमजोर टाइप का है, ये दिक्कत नहीं करेगा किसी को, जहां से मिलेगा उधर से वो निकल जाएगा। यानी कि एवरेज लोगों का, जिसका जनसंख्या ज्यादा है हमारे देश में, वैसे वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये यहां से इस बाहर वाले को सिलेक्ट करेगा, यानी यहां आ गया आर्गन, इस जगह पर D 1 2 3 4 एंड 1 5, 3D 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां S और इस जगह पर P। देखो तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इसको? 4 4, तो ये 4 में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। 1 2 3 4, ये 4s का था और ये किसका था? 4p का। तो ये चारों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। अब यहां इंफॉर्मेशन लिख लिए, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। ज्योमेट्री बताओ कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितना है? 2। पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू निकलेगा √n/n+1 की 2। अब n की जगह पर 2, तो 2 × 2 + 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, यानी √8। √8 का मतलब हो गया 2√2। 2√2 करने का मतलब आ गया √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो यानी यहां करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.82 बोर मैग्नेटॉन। बोलो समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? एक एक करके हटे हैं, अब 8 बचे। अब आप नोट कर सकते हैं इसको। या लिखिए, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।